Good morning, all of you. Dear friends, today our country is celebrating National Sports Day. On this auspicious occasion, I would like to wish you all games and sports are part and parcel of our life, because these sports will give us many benefits. Suppose a person who plays morning and evening, his physical fitness is very good. He can be a healthy person. That is why when army selections take place, they give preference to the sportsman, because they can tackle the situation easily. The games and sports, a person who is engaged in this, he can lead his life in a successful way. Daily physical exercise will increase the stamina, will give you a very good health. The sportsmen are not prone to the diseases. Their immunity will be a very good level. So that is why we all have to incorporate these games or sports in our daily life, so that a country can become very strong. If citizens of the country are strong, automatically the country will be strong. So that is why our education system is also encouraging these games and sports. Every child should be attached to a game. Nowadays, due to changing society, changing technology, children are playing games in the mobile or in computer. These will not increase our strength. Yes, if any person plays video games half an hour or a limited time, that will enhance his skill. When it is observed, the doctors who are operating, when they play video games half an hour, their skill is found increased. But if we play video games continuously, this will harm our mental health as well as physical health. One should play on the field, any open area. We need not require a good stadiums, international standard of stadiums. We know a number of very good top world class players. Your famous player is Tendulkar. Where he has played? On the street only. Our country is very big. We do not have such a huge facilities for such a huge population. But there are facilities. We have to find out our own ways and means. So in the playground, if you play daily in the evening, 1 hour at least, you can become a successful citizen. Because sports and games will increase your mental well-being. You can cope up the pressure. You can face the defeat with a smile. You might have observed in the TV, the international games, they will shake hand each other, the winner and the runner. Later on they cry because they lost. So this will help us in coping our emotions. And when we work, we feel so much pressure. When you study, you feel so much pressure. So that pressure will be released when you play in the open air. So children,
all of you are to play on the ground. Not only children, there is no any age restriction to play. We see nowadays, earlier they did not come to the roads and they play. But nowadays we see when we go on the vehicles on the roads, children along with their parents, they play. Parents are teaching to the children as well as they are doing exercise. So I can say very clearly that games and sports are not restricted to a particular age group. And we are having classic examples in our culture. Our grandparents become horses to play with their grandchildren. They put their children on their backs. They move on the floor. So that is why they did not have the BP or sugar like. They had a healthy time, I can say. So there is no age restriction for the games. Particularly we have to focus on outdoor games. All of you have to play. And not only this, if you focus more and more, you will get many other benefits also. These famous players, or if they play at state level, those will get the job easily. The government will give reservation to in their jobs for these sports people to encourage the games. The famous players already given the jobs. When they get some medal in the athletics like that, they will get immediately the job. The organizations, the State Bank, like all, they offer the jobs. They feel pride having these sports person as their staff. So, if we focus more at this little age, from the small age only, we have to focus. We have to get proper training. Then only one can become a sportsman. That is why our education system earlier used to say the sports and games as extracurricular activities. But now these are treated as co-curricular activities till now. But in the new education policy 2019, in the coming years, those are treated as part and parcel of the curriculum. These are also treated as curricular activities. So, my dear children and parents, I request you all, be engaged in any game, an outdoor game. Don't stick to the indoor games. If we play football in the computer, we can't achieve anything. Like if you sit and travel in the computer, in a train, you cannot reach the goal. So, my humble request to all of you are to attach with any game. Besides this, have healthy food also. So if you focus more, you can be physically fit, mentally well, you can live longer, you can avoid all the diseases. So sports and games take an important place in our life. By recognizing this importance, the multinational companies where mental work is very high, pressure is very high, to release these pressures, the multinational companies, every company has one stress release techniques. The most important is games facilities, tennis facilities, table tennis, lawn tennis, etc. And outside to play, every facility they are providing. So dear friends, now I hope that all of you will attach with one or either any other game and you spend your time. Have a happy sports day. All of you, Namaste.
नमस्कार, मैं सुनील जोशी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कोरबा से। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस एवं जीवनी मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इनके जन्मदिन 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको व्यतीत है, ओलंपिक्स में हमारी जो भागीदारी होती है उसमें मेडलों की संख्या बहुत ही कम होती है, जबकि हमारी जनसंख्या देखी जाए तो 125 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मेजर ध्यानचंद की हॉकी में दिए गए योगदान को याद करने के लिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन सभी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में विशेष आयोजन किया जाता है, खेलकूद दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपना मनोरंजन और साथ साथ अपना विकास भी करते हैं। आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं हमारे देश के, उन्हें सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे हमारे भविष्य, हमारे बच्चे। जैसा कि व्यतीत है आपको, आजकल सभी बच्चे अपना अधिकतर वक्त मोबाइल, टीवी, पीसी, लैपटॉप, टैब में व्यतीत कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले देखें हम तो पाएंगे कि आंखों की रोशनी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ ही सालों में बच्चों को चश्मा लग। दूसरी चीज़ है मेंटल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। जैसा कि हम देखते हैं, छोटे बच्चे यदि गेम खेलते हुए टीवी में गेम खेल रहे हैं और हार जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम हार गए हैं, हम अब जीत नहीं सकते हैं। इस स्थिति को ग्राउंड पे देखें हम तो पाएंगे कि यदि टीम हार रही है तो उनके मित्र, फ्रेंड्स उन्हें साइकोलॉजिकल बूस्टअप करते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है, टाइम बचा हुआ है, हम मैच में बहुत अच्छा कर सकते हैं। या टीम हार गई है तो भविष्य में होने वाले मैचों में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मेंटल डेवलप की बात करें हम तो हम पाते हैं कि जितना विकास ग्राउंड पे होता है उतना मोबाइल खेलने से नहीं होता। मोबाइल में जो गेम है वो आपको एक एरिया में बांध देते हैं, उस एरिया से आप बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन यदि हम ग्राउंड पे देखें तो हम पाएंगे कि सिचुएशंस हमेशा चेंज होते हैं। ग्राउंड में अलग अलग सिचुएशंस पे हमारा माइंड अलग अलग एक्टिवली वर्क करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी सिचुएशंस पे हमें क्या निर्णय लेना है, और यदि हमारा निर्णय गलत है तो दूसरी बार वो निर्णय कैसे सही करेंगे हम। इस प्रकार बच्चों का मेंटल, फिजिकल विकास ग्राउंड पे होता है। तो चलिए हम अब दूसरी चर्चा करते हैं मेजर ध्यानचंद की जीवनी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है, उनके सैनिक जीवन की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उनके खेल कौशल की। सबसे बड़ी उम्र में सैनिक के रूप में उनकी भर्ती हुई। उनका खेल कौशल देखकर उन्हें हॉकी टीम में लिया गया और हॉकी की नई ऊंचाइयों को छूते गए, और साथ ही साथ उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सबसे पहले उनको
1927 में लांस नायक बनाया गया। उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए 1927 उनको लांस नायक बनाया गया। फिर 1932 में उन्हें नायक नियुक्त किया गया। उसके बाद जब वो हॉकी टीम के कैप्टन बने तो 1937 में उन्हें सूबेदार बनाया गया। उसके बाद 1943 में उन्हें लेफ्टिनेंट नियुक्त कर दिया गया। भारत के स्वतंत्र होने पे उन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई और भविष्य में उन्हें मेजर की उपाधि भी प्रदान की गई। और जितनी भी पदोन्नति हुई है वो उनके खेल प्रतिभा को या खेल कौशल को देखते हुए दी गई थी। तो हम इस बात से भी आशा निकाल सकते हैं कि जितना अच्छा आप खेलेंगे उतनी ही आपकी ऊंचाइयाँ वर्चस्व बढ़ता जाएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं हमारा मुख्य विषय खेल जीवन। मेजर ध्यानचंद बचपन में हॉकी पे उतना इनका ध्यान नहीं था और क्योंकि पिताजी का ट्रांसफ़र बार बार होता था, आर्मी में थे और शिक्षा भी उनकी अच्छे से नहीं हो पाई, तो वो 16 साल की उम्र में वे चले गए आर्मी में और आर्मी में ही उन्होंने अपना हॉकी की शुरुआत की। हॉकी के बारे में जब ये ब्राह्मण रेजिमेंट में थे उस समय मेजर हुआ करते थे मेजर बेले तिवारी। उन्होंने उनके हॉकी के शौकीन को वो काफ़ी हॉकी के शौकीन थे और उन्होंने ही मेजर ध्यानचंद को हॉकी का पहला पाठ पढ़ाया था। सन 1922 से 1926 तक वे सेना के लिए खेलते रहे और अपना योगदान दिया। दिल्ली में वार्षिक उत्सव हुआ आर्मियों का, उन्हें काफ़ी सराहा गया। उनकी गेम काफ़ी सबको बहुत अच्छा लगा। गेम उनका काफ़ी हौसला बढ़ा। इससे जो भी उनके मित्र थे, देखने वाले दर्शक थे, उन्होंने पाया कि मेजर ध्यानचंद में प्रतिभा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए और यह सब देख के मेजर ध्यानचंद का हौसला बढ़ा। 1926 में न्यूजीलैंड से पहला मैच हुआ था और उन्होंने वहाँ 21 मैच खेले, जिसमें से 3 प्रैक्टिस मैच थे। इन 21 मैचों में से 18 जीते, 2 मैच ड्रॉ रहा और 1 मैच में वे हार गए। और इस मैच में 192 गोल बनाए, मीन्स 21 मैच में 192 गोल्स। और कितने इंडिया ने गोल खाए? सिर्फ 24 गोल खाए। एवरेज आप देखिए कितना डिफरेंस है। उसके बाद 27 मई सन 1932 ई में श्रीलंका में 2 मैच खेले। एक मैच में उनका स्कोर रहा 21-0 और दूसरे मैच में रहा 10-0। मीन्स दोनों मैच इंडिया विजय रही और श्रीलंका ने कोई गोल नहीं कर पाए। सन 1935 में हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई। वहाँ उन्होंने 49 मैच खेले, जिसमें से 48 मैच जीते और 1 मैच जो है बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। और उन्होंने 1947 में प्रथम श्रेणी हॉकी से संन्यास लिया। आइए अब हम चर्चा करते हैं ओलंपिक्स में मेजर ध्यानचंद जी का योगदान। फर्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया एम्स्टर्डम 1928 में। उन्होंने फर्स्ट ओलंपिक मैच खेला। इन्हें पहला मैच 27 मई 1928 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, जिनमें स्कोर था 6-0। सेकेंड मैच खेला उन्होंने 18 मई बेल्जियम, मैच था बेल्जियम के साथ। उनमें स्कोर था 9-0।
थर्ड मैच खेला उन्होंने डेनमार्क के साथ 20 मई को, स्कोर था 5-0। नेक्स्ट मैच था 22 मई को स्विट्जरलैंड के साथ, स्कोर था 6-0 तथा 26 मई को फाइनल मैच खेला गया हॉलैंड के खिलाफ और स्कोर था 3-0। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जितने भी मैच इंडिया ने खेले किसी को गोल करने नहीं दिया। मीन्स सारे के सारे गोल इंडिया टीम ने किए और 29 मई को पदक दिया गया उन्हें। तथ्य यह है कि फाइनल में हॉलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए। टोटल टीम का स्कोर था 3-0 और उसमें से 2 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किया था। अब हम बात करते हैं 1932 ओलंपिक्स की, लॉस एंजलिस। यहाँ फाइनल में अमेरिका के खिलाफ मैच खेलते हुए स्कोर बनाया 24-1, अर्थात सिर्फ अमेरिका वालों ने सिर्फ 1 गोल कर पाए। और अभी तक जितने भी मैचेस हुए थे उसमें भारत का स्कोर था 262 गोल्स, जिसमें अकेले मेजर ध्यानचंद ने 101 गोल स्वयं किए थे। और इन प्रतिभाओं को देखते हुए अमेरिका समाचार पत्र ने लिखा है, भारत हॉकी टीम तो पूर्व से आया हो तूफान थी। मीन्स पूर्व से जो तूफान आई वो हॉकी की टीम थी, इंडिया की टीम। अब बात करते हैं हम 1936 बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन जर्मनी, नाम सुनते ही सबको याद आ जाता है जर्मन, हिटलर, तानाशाह। तो ये बात करते हैं हम 1936 जर्मन ओलंपिक्स। ध्यानचंद को भारत का कैप्टन बनाया गया और इनका जो पहला मैच हुआ था जर्मनी के साथ, ट्रायल मैच था, उसमें भारत की टीम हार गई थी, जिससे सभी खिलाड़ी बहुत दुखी थे। स्वयं कप्तान मेजर ध्यानचंद बहुत दुखी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम कैसे मजबूती प्रदान करेगी, जिससे हम, जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिस मैच में जर्मनी से हारने के बाद सभी खिलाड़ियों का मनोबल टूटा हुआ था। इस स्थिति को संभालने में टाइम लगा और पहला मैच जो था 5 अगस्त को हंगरी के साथ हुआ। यह मुकाबला भारत ने 4 गोलों से जीत लिया। सेकेंड मैच था 7 अगस्त को जापान के साथ। जापान के साथ स्कोर था 9-0। मीन्स जापान एक भी गोल नहीं कर पाई। नेक्स्ट मैच था थर्ड मैच, वो था फ्रांस के साथ, जिसमें भारत ने यह मैच 10 गोल से जीत लिया। चौथा मैच था, फाइनल मैच था जर्मनी के साथ। क्योंकि जर्मनी से पहली टीम हार चुकी थी, इसलिए यहाँ पर फिर से एक स्थिति बनती है मनोबल कम होने का, मनोबल कमज़ोर होने का। तब मैनेजर जो थे अपने, पंकज गुप्ता जी थे, उन्होंने एक युक्ति निकाली कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सभी खिलाड़ी मोटिवेट हो जाए। क्योंकि अधिकतर खिलाड़ी आर्मी से थे, तो उन्होंने क्या किया, तिरंगा झंडा सामने रखा और कहा इसकी लाज अब हमारे हाथों में है। मीन्स यहाँ बात आ गई देश की, और जैसे युद्ध होता है तो एक सैनिक लड़ने जाता है, उसी प्रकार सभी खिलाड़ी मैदान पे उतर गए लड़ने के लिए और ये मैच जीता भारत ने 8-1 से। इस ध्यान दिया होगा आपने, 15 अगस्त को ही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं हिटलर व डॉन ब्रैडमैन की संवादों की। जब भारतीय टीम 1935 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे में थी,
तो उस समय ब्रैडमैन भी क्रिकेट के दौरे पे थे। एक मैच के लिए जब भारतीय टीम एडिलेड गई तब वहाँ मुलाकात हुई मेजर ध्यानचंद से डॉन ब्रैडमैन की, और उन्होंने कहा आप इस तरह गोल करते हैं जैसे कोई क्रिकेट में रन बनाता है। और जब उन्हें पता चला कि 48 मैचेस में मेजर ध्यानचंद ने 201 ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाया या बल्लेबाज ने। और अब बात करते हैं हिटलर की। जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद का गेम देखा तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि यदि ये जर्मनी टीम में आ जाते हैं तो जर्मन टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मेजर ध्यानचंद को बड़े ओहदे की, बड़े पोस्ट की आर्मी में देने का आग्रह किया कि आप जर्मनी टीम से खेलिए, हम आपको बड़ा पोस्ट देंगे। क्योंकि मेजर ध्यानचंद आर्मी से थे, देशभक्त थे, उन्होंने ये पदवी लेने से अस्वीकार कर दिया और वे वापस इंडिया आ गए। बात करते हैं हम कुछ आश्चर्य की। मेजर ध्यानचंद जब हॉलैंड में थे, उनका मैच चल रहा था, तो सबको आशंका हुई कि हॉकी तो इतना अच्छा खेल रहे हैं, वो जरूर हॉकी स्टिक में मैग्नेट लगा होगा। इस आशंका से उनके हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि हॉकी स्टिक में मैग्नेट है कि नहीं। दूसरा स्थिति हम देखते हैं जापान की, जहां वो इतने अच्छे से हॉकी खेल रहे थे, लोगों को लगा कि जरूर उनके स्टिक में गोंद लगा होगा। ये दो घटनाएं हैं, लेकिन दोनों घटनाओं में हमने ये पाया कि मेजर ध्यानचंद बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीष तिवारी, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एनटीपीसी कोरबा। आज मैं आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उत्सव पे हर वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है, उस खेल दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, खेल जीवन का अभिन्न अंग है। केवल स्फूर्ति या शारीरिक परिपक्वता के लिए नहीं, अपितु जीवन में खेल भावना को विकसित करना भी बहुत आवश्यक है। खेल भावना से तात्पर्य अनुशासन, खेल भावना से तात्पर्य परिश्रम, खेल भावना से तात्पर्य शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति, खेल भावना से तात्पर्य नेतृत्व की क्षमता, खेल भावना से तात्पर्य टीम वर्क, खेल भावना से तात्पर्य तनाव से मुक्ति। ये बहुत आवश्यक है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, तब तक आप खेल के बारे में या खेल जीवन के बारे में ज्यादा आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। जब आप किसी खेल को खेलना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ती हुई चली जाती है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बात कही, चाहे परिश्रम की मैं बात करूं, चाहे अनुशासन की मैं बात करूं, चाहे लीडरशिप की मैं बात करूं, मैं टीम वर्क की बात करूं, ये केवल खेल भर में आवश्यक नहीं है, अपितु जीवन के हर क्षण, हर पहलू में ये आपके काम देने वाली चीज है। खेल भावना हमारे जीवन में चुनौतियों को भी खेल की तरह जीतने का साहस और हौसला देती है। एक अच्छा खिलाड़ी वो नहीं केवल जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल कर चुका हो। खिलाड़ी वो भी है जो जीवन के हर खेल को उसकी अपनी क्षमताओं के अनुरूप खेल सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर के पास हर तरीके की क्षमताएं मौजूद हों, लेकिन जब एक खिलाड़ी किसी खेल के लिए उतरता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, उसको जीतना। जीतने का मतलब ये नहीं कि वह हार से डरता है, लेकिन अपनी क्षमताओं को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आत्म सम्मान के साथ और आत्मबल के साथ उस जीत को हासिल करने के लिए उतरता है। खेल केवल यह नहीं बताता कि आप अपना पूरा समय खेल के लिए ही दे दें, लेकिन खेल हमें यह जरूर बताता है, खेल हमें यह जरूर सिखाता है कि हमें अपने जीवन का कुछ समय खेल के लिए भी अर्पित करना चाहिए।
क्योंकि खेल शारीरिक और मानसिक जो आपकी वृद्धि करता है वह कम नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आपका शरीर या आपका मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप बाकी किसी दूसरी कार्यविधियों में अपने आप को अच्छी तरीके से संलिप्त नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में जो संयम, अनुशासन और परिश्रम का जो पाठ वो खेल से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। खेल हमें यह भी सिखाता है कि एक बार हारने का मतलब सभी खेलों से हार जाना नहीं है, अपितु खेल हमें यह सिखाता है कि शायद हमारे परिश्रम में, शायद हमारे अनुशासन में, शायद हमारे स्किल में, शायद हमारे नेतृत्व में वो कमी रह गई जिसे हमें अगली बार के खेल में सुधार लेना है। और ठीक यही चीज हमें अपने जीवन के साथ करनी है। बस खेल बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, उससे हमें हारना नहीं है। तो जो जीवन की चुनौतियां हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा पाठ हमारा खेल हमें सिखाता है। इसलिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हमें संकल्प करें कि हम अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हम अपने दिनचर्या में से कुछ समय खेल के लिए भी अर्पित करें, और केवल अर्पित ना करें, उसको सही तरीके से जिएं। क्योंकि जब आप खेल भावना के साथ किसी भी खेल के साथ अपने आप को संलिप्त करते हैं, अब वो खेल कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलने जाएं तभी वो खेल कहलाएगा। जिस तरीके की सिचुएशन और कंडीशन आज की डेट में चल रही है उसको लेकर यदि आपने ये मान लिया, खेल भावना का मतलब है कि आप किसी चीज को करने के लिए यदि आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो वो आप उसका एक अनुशासित कार्यक्रम आप बना लें। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते वह दिन में 2 बार सुबेरे या शाम टहलने का कार्यक्रम, थोड़ा योगासन करने का कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और जो आज का यूथ है, आज का जो वयस्क है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बाहर निकले, केवल टीवी, मोबाइल और इन सब चीजों से बाहर निकलकर खेल के प्रति भी अपने आप को समर्पित करे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बच्चे टीवी और मोबाइल में इतने ज्यादा बिजी हैं कि कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे क्रियाकलाप जो निखर कर सामने आने चाहिए वो कई बार नहीं आ पाते। साथ ही साथ उनके शारीरिक जो श्रम जो उनको करना चाहिए वो भी उस उम्र में वो नहीं कर पाते। लेकिन हम जब देखा करते थे कि चाहे वो शुरुआत से रहा हो, खेलों के लिए उतना ही समय होता था जितना बाकी चीजों के लिए होता था। तब ना तो इतनी भागदौड़ होती थी, तब हमारे पास एक टाइम होता था कि ये 2 घंटे हमारे खेल के लिए, और हम उसमें मन भर के खेला करते थे। उसकी उपयोगिता आज हमें समझ में आती है कि जब हम खूब खेल लेते थे तो हमारा दिमाग उस तरफ नहीं जाता था, तब हम फ्री होते थे और तब हम अपनी पढ़ाई और बाकी दूसरे क्रियाकलापों को भी उतने ही अच्छे तरीके से करते थे जितना हम अपना समय खेल के लिए दिया करते थे। बच्चों, बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को सुदृढ़ करें। आप अपने खेल जीवन में होने वाली गतिविधियों को, उनके खेल भावना को अपने आप में इस तरीके से सजोले कि वो खेल के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के लिए भी उसी तरीके से काम करें। खेल भावना का मतलब, या राष्ट्रीय खेल दिवस पे इस तरीके की बात करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि आज के दिन हम मेजर ध्यानचंद को याद करें या केवल खेल के बारे में 2 शब्द करके चुप हो जाएं। इसको अपने जीवन में भी उतारें। और खेल हमें ये सिखाता है कि केवल जीतना भी आवश्यक नहीं और केवल हारना भी आवश्यक नहीं। कई बार हारा हुआ खिलाड़ी भी अपना नाम उन लोगों के साथ अंकित करता है जो जीते हैं उनसे भी ऊपर। तो आप यदि जीवन में हार भी जाएं तब भी आपका नाम जीते हुए खिलाड़ियों के लिस्ट में भी सबसे ऊपर दिखे। अपने आप को इस तरीके से आपको बनाना है। तो खेलिए, क्योंकि स्वस्थ हैं यदि आप, तभी आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि आप बाकी सब करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं रहे, आप सुदृढ़ नहीं रहे, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? आप घूम नहीं पाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप अपनी सभी क्रियाविधियों को, आप जो भी काम कर रहे हैं जीवन में, उनको सही तरीके से उपभोग करना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम अपने जीवन में
एक खेल को अनिवार्य रूप से आप क्या करें, संजो लें, कम से कम उसे खेलें। हो सकता है कि बीच बीच में वो छूटे, लेकिन फिर उसको बीच बीच में पकड़ने की कोशिश करें, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे और आप स्वस्थ रहें। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उम्मीद है आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करूंगा कि आप सब कम से कम एक खेल को अनिवार्यता अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और खेल की जो खेल भावना है, या यूं कहिए ना हार मानने की जो प्रकृति है खेल की, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। छोटी छोटी बातों पे हार नहीं मानेंगे, और हार ना मानना ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष भृगुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस, जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें, और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आए, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और इनमें मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है, और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें, और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं, और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इलाहाबाद की शान बैडमिंटन के ओलंपियन और अभिनिशान गुप्ता जी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो क्योंकि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है, और सर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे और क्या क्या तपस्या इन्होंने की है, सर से ही डायरेक्ट हम पूछते हैं, सर से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर थोड़ा सा बच्चों का मार्गदर्शन करें। और आगे आवाज़। पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी 29 अगस्त को ध्यानचंद दिवस है, और आपको बताना चाहूँगा कि ध्यानचंद जी यहीं इलाहाबाद में पैदाइश हुई थी सन 1905 में, और यहीं वो जन्मे थे, और वो हॉकी के महान खिलाड़ी थे। और उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा खिलाड़ी ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। और उनका सबसे बड़ा योगदान हमारे भारतवर्ष के लिए ये था कि उन्होंने 28, 32 और 36 में ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और
ऐसा अभी तक कोई प्लेयर नहीं हुआ जितना बड़ा काम उन्होंने किया है। तो हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं यहाँ माहौल में मैंने बचपन से यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और मेरे पिताजी हॉकी प्लेयर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा और काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचा। तो मेरी यही आपसे विनती है कि आप बहुत ही जिसमें आपका टैलेंट हो, आप खेल और पढ़ाई बड़ी लगन से करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो और खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारी फिटनेस अच्छी रहती है, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है, हम पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं और खेल में भी अच्छे रहते हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप बहुत लगन से पढ़ाई और खेल करें, और तभी आप अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे, प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे और भारतवर्ष का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपके बारे में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है आपको पढ़ना, तो जो अर्जुन अवार्ड की बात होती है तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत सारी अद्भुत चीज़ें आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप जो है एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं अभी तक जिन्होंने मिनी, सब जूनियर और सीनियर नेशनल में आपने 2 बार नेशनल चैंपियन रहे, और सब जूनियर में भी आप 2 बार नेशनल चैंपियन रहे। सर थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में सर बताएं। लिम्का बुक में भी आपका नाम है सर, प्लीज़ सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं बचपन से मैंने, हमारा जो एज कैटेगरी है वो अंडर 12, अंडर 15, अंडर 18 और ओपन चैम्पियनशिप होती है। तो मैंने सभी में नेशनल टाइटल जीती है, और इसके अलावा सीनियर में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंच ओपन, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, और थॉमस कप प्रतियोगिता में विश्व की प्रथम 6 टीमों में गोपी जी के साथ मैंने योगदान दिया। और अभी मेरे खेल में स्टैमिना, पेशेंस, ये सब काफ़ी अच्छा था। मेरा कोर्ट कवरेज काफ़ी अच्छा था, और सबसे अच्छी बात है आपको जो है कूल माइंड होना चाहिए हमेशा खेल में। अगर आप कूल माइंड रहेंगे, एक फार्मूला है हॉकी, उसको अगर आप याद रखेंगे, H मीन्स हो गया हार्ड लेबर, O मीन्स हो गया ओबीडियंट, C मीन्स हो गया कूल माइंड, और K हो गया कीन टू नो, और E मतलब हो गया एनर्जेटिक और ईयरली। तो आपको साल भर मेहनत करनी है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित ही आप किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी खेल में रहें, तो आप आगे और बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। सर मैं अभी हमारे बीच में जो है मिस्टर संदीप गुप्ता सर हैं, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। हम सर से भी कुछ जानना चाहेंगे कि सर बच्चों को खेल में कैसे आगे बढ़ाया जाए, और खेल और स्टडी में, चूँकि आजकल लोगों की मानसिकता है कि खिलाड़ी होना बहुत कठिन है, पढ़ना बहुत कठिन है, चीज़ें बहुत कठिन होती जा रही हैं। सर उसको हम कैसे मैनेज करें, सर से हम जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो सभी प्यारे बच्चों को दादा ध्यानचंद की जन्मदिवस 29 अगस्त की सब ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें खेलने में, तो खेल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। पहले हम लोग कहा करते थे कि भाई खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ो लिखोगे तो होगे नवाब। पर अब आज कहावत जस्ट उल्टी हो गई है, क्योंकि खेलना क्या है, जब तक आपका मन और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाई में ध्यान दे ही नहीं सकते। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है, तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि कोरोना काल में देख रहे हैं कि हम कोविड-19 में जो बहुत बड़ी महामारी है, जिसके कारण सब कुछ पूरा विश्व में उथल पुथल मची हुई है, तो इसमें बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेल में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि खेल गतिविधियाँ सामूहिक रूप से जरूर बंद हैं, पर पर्सनली रूप से आप अपने घर पे, अपने आसपास के मैदान पर रह के थोड़ा फिजिकल फिटनेस का पार्ट ज़रूरी है। क्योंकि आप दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, दिन भर ऑनलाइन कंप्यूटर में, टीवी में इस रहते यूज़ करते हैं, तो उससे आपके आँखों पे और आपके सेहत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय अपने खेल के लिए देना है, और कैरियर दोनों में ही कैरियर है। अगर आप खेलने में आप बहुत ज़्यादा लगनशील है तो स्वाभाविक बात है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा है, क्योंकि खेल ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप बहुत लंबे समय तक अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को स्वस्थ और फिट महसूस कर सकते हैं, और अपना आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। पढ़ना ज़रूरी है,
पढ़ेंगे नहीं तो खेल की जो भी टेक्निक और प्रैक्टिस हैं, जो बारीकियाँ उन तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि खेल भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। उसके अंदर भी हर चीज़ पूरी साइंस है कि कैसे आपको खेलना है, कैसे कौन सी टेक्निक यूज करना है, कहाँ करना है, कब करना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग बच्चों से यही आप लोगों से जो आप लोगों को एक देना है, सुझाव देना कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ खेलना जरूरी है, और केवल खेल रहे हैं तो आपको पढ़ना भी जरूरी है अपने अच्छे आने वाले भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशा करता हूं कि जो आपके द्वारा जो हमारे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी गई, जो महत्वपूर्ण बातें बताएगी, बच्चे ज़रूर उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और उस पर चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। मैं अभिनय सामगुप्ता सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक साथी भी हैं जो काफ़ी एज उनकी हो गई है, वो अपने आप को कैसे सर फिट रखें इस पेंडेमिक में? नहीं, आजकल जैसा है माहौल है, इस टाइम में मेरे ख्याल से योगा करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। जैसे बाबा रामदेव जी का 5 इंडिया टीवी पे आता है, तो वो निश्चित ही वॉच करें। उसमें अनुलोम विलोम, कपाल भारती और विटामिन सी आपके अंदर इनटेक होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप रहेंगे और थोड़ा बहुत नहीं है वॉक कीजिए, तो आपके अंदर मेन है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कितना हम बनाए रखते हैं। जितना हमारे अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी, और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लगाए रखें, तो ये आपको निश्चित ही कोरोना से बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। और सर आपसे हम एक प्रॉमिस चाहते हैं कि सर जब भी पेंडेमिक ख़त्म होगा तो सर एक अतिथि के रूप में आप हमारे यहाँ विद्यालय में आना स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू।